Hello friends, welcome to my channel Financial Comprehension. Friends, today we'll discuss about one of the powerful financial tool, that is credit cards. Now, we all know that what is credit card and how this credit card is one of the, why I'm saying this is a very financial powerful tool, because it has lot of advantages also, but you know with power there are lot of responsibilities and lot of other things. There are a lot of disadvantages also. With power there is lot of high risk. With power there is risk also. So it results in lot of disadvantages also. Now why, so we discuss our debt settlement, debt management plan. हम हमेशा डिस्कस करते हैं चीज़ों के बारे में. बट क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये एक वन ऑफ दी, आप बोल सकते हैं ये एक वन ऑफ द क्रेडिट line which always in the list, and people fall into this debt trap. Okay, this becomes a very common root cause of falling into a debt trap. People falling into debt traps because of credit cards. Now we can discuss about debt settlement, debt management plan, and if required we can discuss that in future also. But ये क्रेडिट कार्ड क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, ये हमें हमेशा समझना चाहिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और मैं अपने जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना आई विल गिव माई टेलीग्राम चैनल लिंक. आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट यू ऑल्सो गेट एन अपडेट ओवर देयर एंड यू कैन send your queries in the telegram channel. You can post and I can try to answer the queries. Just comment. Okay, and let's start. So to begin with, let's root it. Okay, so what is a credit card? So each and every individual has his or her own way of defining the credit card. Okay, according to what he is looking or she is looking at the credit card. तो सबका एक अलग अलग डेफिनेशन होता है, अलग अलग वे ऑफ एक्सप्लेनिंग होता है क्रेडिट कार्ड क्या है. एक एक यूट्यूबर्स का एक एक व्यूज़ होता है. तो ये मेरा एक व्यू है जो ऑलमोस्ट सेम ही है सबके लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है, बट एक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थोड़ा सा अलग है ना. इट्स वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इन अ डिफरेंट वे. So credit card is a powerful financial tool in a rectangular plastic format which gives you the freedom and accessibility to fulfill all your wants and needs, even when you do not have the money in reality to achieve that particular thing. Okay, now to begin with this line, powerful financial tool. You see, why I'm saying this is a powerful financial tool. See, this is a tool that, suppose you do not have enough money, you are sitting in the end of the month, your salary will come by next 30th or 1st, but today is, for example, I'm making this video on 20th of month and I don't have enough money. I need some money to pay today. It's around a 4,000 5,000 bill. I don't have the money, like a 10,000, or not 5,000 is very low, 10,000 20,000 bill, and I need something, or I need to go somewhere. I need to buy a ticket. Somebody in my back in hometown got sick. मैं टिकट खरीदा और क्रेडिट कार्ड के पैसे से चला गया फ्लाइट से घर. नाउ हाउ this credit card is, this is the power you have when you have a credit card कि आपके टाइम से ये इमरजेंसी के टाइम पर काम आ गया. बट क्या ये सही है और क्या ये गलत है, और इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग? वी विल डिस्कस दिस लेटर. चलिए लेट्स मूव नाउ. तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि ये एक क्रेडिट कार्ड है जो एक फाइनेंशियल टूल है इन रेक्टेंगल फॉर्मेट. ठीक है,
एंड विथ ऑल ऑन वंस एंड नीड्स, या फिर आपको कहीं पे कुछ चीज़ें खरीदना है, आपके पास पैसा नहीं है उस टाइम पे, आप चीज़ें खरीद लिए, उसकी ईएमआई में ब्रेक कर दिए, तो ये पावरफुल है। आपका ज़्यादा कोई करना है, एक प्लास्टिक मनी है आपके पास, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। बट ये पावर, ये जो पावरफुल बोलते हैं, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ग्रेट रिस्क, ठीक है। तो ये कितना सही है, ये पावर को आप कितना यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो पावर है ये ऑल दी कोई पावर है या फिर कोई ट्रैप है, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे, तब बढ़ेंगे, तब पता चलेगा हमें। सो शुड यू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू एज एन इंडिविजुअल लुक एट द फाइनेंस इन होलिस्टिक वे। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आपके ऊपर डिपेंड होता है कि वेदर यू वांट टू यूज़ अ क्रेडिट, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो नाउ let's go back a few years back when you do not when you a person without a credit card, ठीक है ना। अभी आप ये मत सोचिए कि आपके, मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ थे, या फिर आप कब से, जब से अपने जॉब से ज्वाइन किया तभी अपने यू लाइक स्टार्टेड टेकिंग क्रेडिट कार्ड्स द डे यू जॉइन द जॉब? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू व्हाट वाज योर लाइफ स्टाइल बिफोर यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, और आज के टाइम पे जब क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करने लग गए तब आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गया, आपका स्पेंडिंग पैटर्न कैसे चेंज हो गया, कंपेयर दोस्त टू, ठीक है ना। तो ये एक एनालाइजिंग एक पावर हो सकता है कि आप अपने फिनेंस को कैसे देखते हैं, स्पेंडिंग पैटर्न को कैसे देखते हैं। नाउ कमिंग बैक टू यू, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, just bear with me, sorry, yeah. So don't use credit card. The day you use credit card for your instant gratification, that is the time that you should not use a credit card. You don't have the money and still buying it फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लाइक आपको पास एक मोबाइल चाहिए, आप यूज़ कर रहे हैं तो, एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इन ऑल्सो इन एवरी नीड, एवरी इमरजेंसी, लेकिन आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर वो दे रहे, फॉर एग्जांपल बिल्स, घर के बिल पेमेंट करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ रहा है, अगर यूज़ करना आप कर रहे हो बिकॉज ऑफ अदर बेनिफिट्स, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट आपके पास पैसा नहीं है, मजबूरन आपको यूज़ करना पड़ रहा है, लाइक यू आर डूइंग इट बाय कंपल्शन बिकॉज आई डोंट हैव मनी, बिकॉज आई ऑलरेडी पेड द बिल, तो फिर वो इफ़ यू डूइंग इट इन कंपल्शन और यू डूइंग इट फॉर एनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कंपल्शन फॉर रेगुलर नीड्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बिल, ग्रॉसरी, ये सब के लिए आपको क्या ज़रूरत करना, हाँ कोई पे कहीं पर बेनिफिट मिल रहा है तो आप यूज़ करो, इंस्टेंट उसका पैसा नो पे, कम बैक एंड पे द मनी इन इंस्टेंट, ठीक है ना। डूइंग बिकॉज यू कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड बिकॉज यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा कैश बैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन पर्टिकुलर स्टोर, यूजिंग इट इज़ ओके। बट इफ़ यू डूइंग इट बिकॉज यू डोंट हैव द मनी योर बैंक अकाउंट एंड यू आर डूइंग इट जस्ट आउट ऑफ कंपल्शन बिकॉज आई हैव टू यूज़ इट, बिकॉज आपको ग्रॉसरी खरीदना ही है, यू हैव टू बाई ग्रॉसरी फॉर योर होम, देन इट इज़ अ बिग it is a question now that now credit card is taking benefit of you, you are not taking benefit of credit cards. Now what are the advantages and disadvantages of credit cards? So advantages, accessibility and interest free if paid within the due date. Disadvantages is the huge interest and penalty charges if not paid on time. So see, credit card, you look the credit card as a tool which is as a favor from taking a friend or taking a favor from a friend or a family member. So for example, you need money or want something, and if somebody helps you, gives you money, a friend or family member gives you money, he or she may not ask an interest, but he or she may tell that okay, you pay this money by this time, and that will be great. Or he can give you some extra, or she can give you some extra time to get back that money. If you taking the money from that person, you use that money to pay anything or get anything done, and you promised him or her to pay back that money within that time. Okay.
सो सेम क्रेडिट कार्ड भी सेम है, सेम ही चीज़ है। आप किसी अपने दोस्त से वो पैसे लिया, पैसे आपने वो यूज़ किया और दोस्त को बोल दिया भाई आज देख 20 तारीख है, मेरा अगले महीने 31 तारीख को आई विल गेट दिस सैलरी बाई 30th फर्स्ट ऑफ दिस मंथ, ओके, बाई फर्स्ट ऑफ दिस मंथ एंड आई विल पे बैक द मनी। बट आपने अब डिसएडवांटेजेस क्या है, आपने वो पेमेंट उस टाइम पे पेमेंट नहीं किया, आपके पास कुछ और प्रॉब्लम आ गया या फिर आपने कुछ दे नहीं पाया, वो प्रॉमिस से आपने ब्रेक कर दिया। दोस्त होगा, घर का कोई लोग होगा तो ठीक है कुछ नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा कोई दोस्त होगा he or she will have a fight, he will have a lot of heated argument and your relation will break or you will have a cold kind of association, चुपचाप भी किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपके एक रिश्ते में एक दरार आ जाएंगे। ठीक है, यही होगा कि इसने बोला था पैसे देंगे, अब ये हो गया नहीं हो गया, शायद उसको भी ज़रूरत होगा पैसे का, ठीक है ना, जब उनकी भी ज़रूरत होगी तो वो पैसा आपसे मांगेंगे, आप उसको दे नहीं पाएंगे, तो एक प्रॉब्लम होगा और इस तरह से एक रिलेशन इफेक्ट होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड भी सेम चीज़ है। क्रेडिट कार्ड में सपोज आपने पैसे उनसे लिया, क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड गिव्स यू अ टाइम पीरियड, क्या 30 डेज तक। और ये बेनिफिट भी देखिए, देयर लॉट ऑफ लोन्स, ऐप बेस्ड लोन्स जो आपको कभी इंटरेस्ट फ्री नहीं देते हैं, बट क्रेडिट कार्ड इज़ द ओनली थिंग पर टूल इन द क्रेडिट हिस्ट्री जिनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, बट इफ पेड ऑन टाइम दैट इज़ इंटरेस्ट फ्री लोन। लेकिन अच्छे तो नहीं है, बैंक को पता है कि विल इफ़ यू फेल देन दे विल चार्ज ए ह्यूज इंटरेस्ट। यहाँ पे तो रिलेशन नहीं ख़राब होंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा, पेनल्टी चार्जेस हो जाएगा, कॉल्स आना स्टार्ट होगा, ये सब स्टार्ट हो जाएगा आपका इफ़ यू डोंट पे ऑन टाइम। ठीक है, उसमें ह्यूज इंटरेस्ट होता है, huge interest. It has a huge interest. This is the biggest disadvantages. It's taking a favor. It's not using your money. So what I have explained is a thing that no, for once and is even when don't have, yes. So it's like taking a favor. It's taking a favor from someone without interest. But if you don't pay back, if you don't respect that favor, then you have to pay the price. Got it? उसको सेटलमेंट कीजिए, वो कीजिए, वो सब तो डेट सेटलमेंट में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दिस इज द फेवर, यू डोंट पे द पे टू पे द प्राइस and you know what is credit card. I do not have to explain in detail, but I'm giving a kind of a different angle of how you should take a credit card and whether this is especially for people who wants to enter into this credit world. Now, should you use a credit card, where it depends on how individual, that how you look at money in a holistic way, whether you respect anybody's favor or not. That is the thing, that you're taking a favor from someone, whether you respect that favor or not. Okay, and that is the way of another thing of taking finance from money from someone and using it and not paying back or paying back on time. Okay, so this is the way of another thing. And another thing is that this is also an advantage of building your credit score again, where your credit score will go up, and if you pay it on time, okay, and it building your credit score or CIBIL score, what you say, and it helps. तो आपके जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपके पास कोई लोन नहीं है, तो कोई स्टार्टिंग करने के लिए आपके छोटा मोटा आप जॉब स्टार्ट किया, आपके छोटा सा कोई स्मॉल अमाउंट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसको टाइम से पेमेंट कीजिए, तो आपको क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में हेल्प करेगा। Now let's come to the FAQs. How many credit cards should I keep? How to start using a credit card? Yeah, how to start or how you should use a credit card, that's also a cover I will do. And how to keep a check on a spending pattern with credit card. So we have already covered a lot of things, but I will just small kind of a recap or highlights in these questions we will try to cover. How many credit cards should I keep? Salaried, profession, business. These are the three categories of people we are in the profession, like somebody is salaried, somebody is professional, like doctors and lawyers, and businessmen.
My fund is very simple. You will find a lot of people who said that use one credit card, आप दो credit card use कीजिए, तीन credit card use कीजिए, फलाना ढिमकाना, बहुत they will say a lot of blah blah blah. Salaried, and salaried means who has a decent, very not high level income like 30 to 70 80,000, 30 to 80k, 30 to 80k of salary. One, businessman two, professional two, businessman two. Now why I'm saying one for this, because you see the professional, these credit cards I just did, so this salaried one. Now why I'm saying one, simple. You have a salary, you put a salary amount, use some money for your salary expenses, some expenses on your salary, some expense on credit card, and when the month's end, you get the salary, you pay your credit card bill, clear your credit card bills, you have a clean sheet credit card and your salary also. Okay, and it's very easy to track because we all pay our bills, because you know that credit card is a monthly statement expenditure. Every month you get a bill, whatever the expenditures you do from 1st to 30th, you pay that bill on the next month after generation. So 1st to 30th bill, next month first the bill get generated, you pay the bill and you again start using the card. Okay, so that is the main motto. Now that's why I say that one credit card for salary, two for, because you can separate two, one for a profession or business and one for your personal. Okay, so this is two, but or business same, but for not a salaried you don't keep three. Okay, a lot of people will say that keep one for this your irregular expenses, one for your big purchases, one for travel, one for emergency, a lot of things they will say. They're gonna two credit cards, three credit cards also. So I will always say, and don't use credit card to build, not to increase the credit limit. Credit limit is nothing. Credit limit is just you're taking more and more loan, and it is also kind of giving a lot of negative impact also. We will discuss all these things later on. So keep one. If you're a simple salaried person, keep one. If you are a businessman, keep two, or professional, that's it. And yes, if you have a partner, like if you and your wife are doing business together, you can keep one for yourself, one for wife, because she has also can do some expenses on your own. That if she has a different source of income, so she can take it on her own also. You don't take the liability of your what is your wife is spending, or what is your, don't take it. You can give her money, you can give her debit card, but don't take credit card. It's very risky. Then how to start using a credit card? Okay, this is also a very interesting topic. See, how you should use a credit card, or how you should start using a credit card, is actually that's what we discussed. Don't use credit card for instant gratification. So take a credit card with a minimum balance. For example, if your salary is 50k, you don't take any credit card account more than 1 lakh, and you set a limit of 40,000 limit per month, or maximum. Why I'm saying I should have set up 10,000 also, but you try 40,000, because if you calculate that if you buy a phone of 20,000, you will have 20,000 limit in your credit card, and then if you pay 20,000 to the phone, so if you pay 20,000 phone, then you will need 30,000 in your bank. Is that enough to do your monthly purchase, other monthly expenditures? That you have to decide, that 30,000 enough or not to pay your monthly bills. So this is a very
thing. So don't use credit card for instant gratification. Don't use credit cards for your day-to-day life expenditures, like for any compulsion. Out of benefit, you're getting some instant discount or any cashbacks is okay, but not out of compulsion. Use credit card where you're getting benefits. Keep another thing, how to keep a check on a spending pattern credit card. So this is a very another discussion topic we can have, that see, the day when you're purchasing anything, you parallelly check your bank account also. So if I'm spending 10,000 rupees on my credit card, do I have that 10,000 money in my bank account as on today? If the answer is no, then second, you see that why I am using this credit card. Is it for a very unavoidable emergency that I have to go somewhere and I need this money and need to buy this ticket to go there because someone in my family is sick, or it's just for instant gratification? So when your life becomes a dependent, when you dependent on credit card, जब आप क्रेडिट कार्ड को पूरा भरोसा कर लेते हैं, तब जब आपकी ज़िंदगी डिपेंड हो जाती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो जहाँ पे कोई स्टोर है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, जहाँ पे खासकर आजकल अमेज़न और बहुत काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स है वेयर यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, तब उसको आप यूज़ कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को, और उस बेनिफिट, उस सिचुएशन का आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो आप सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, ठीक ना। आपकी सिचुएशन क्या बोल रही है, सिचुएशन आपका एडवांटेज ले रहे हैं या फिर आप सिचुएशन का एडवांटेज ले रहे हो। Whether you are taking the advantage of the situation or situation taking the advantage of you. So today when someone is standing, नहीं मुझे तो जाना ही है, मेरे घर में कोई बीमार है या फिर ये सामान मुझे चाहिए, नहीं तो एक बहुत ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस घर में ख़राब हो गया है। आप अगर मान लीजिए घर में आपके फ्रिज ख़राब हो गया, आपका फ्रिज ठीक करवाना है, ठीक है, तो वो पैसा आप कहाँ से, वो सिचुएशन आपका एडवांटेज ले रहे हैं, तो आप कंपल्शन के आउट ऑफ नो ऑप्शन आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे नहीं, अरे फ्रिज में तो एक बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर परचेस करेंगे तो मुझे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स आ जाएगा इसमें अगर इसमें शॉपिंग करेंगे। बट हाँ, शॉपिंग कर लेते हैं, घर में जाके इसका पेमेंट बाई 5-6 डेज, और उसी दिन में आई विल पे बैक द मनी। तो तब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो आप क्रेडिट सिचुएशन, तो वो आप देखिए जो क्रेडिट कार्ड को जो है, वो क्रेडिट कार्ड का सिचुएशन क्या है। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं अपने फेवर पे, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं सिचुएशन पे। वेदर सिचुएशन टेकिंग द एडवांटेज, वेदर क्रेडिट कार्ड इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन और यू आर टेकिंग द एडवांटेज। क्रेडिट कार्ड सिचुएशन एडवांटेज कैसे ले रहे हैं कि भाई इसके पास तो पैसा नहीं है, अब ले लेते हैं, 10,000 तो नहीं दे सकते, इसे आप फिर EMI में उसको कन्वर्ट करेंगे परचेस के, या फिर जो आपके जो ट्रांजैक्शन होगा उसको EMI परचेस करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो तब क्रेडिट कार्ड आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल टू गेट सम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, to get some instant to get some instant discount, okay, or to get some instant, you can say discount, or to get some cashbacks, okay, then you are taking the advantage of credit card. So the day this is the ये एक मोटा में दिस इज़ द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द एडवांटेज। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिचुएशन कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये है कि हाउ टू कीप अ चेक ऑन स्पेंडिंग पैटर्न। तो ये चेक होता है कि जिस दिन आप ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना, उस दिन आप देखिए आपके सिचुएशन क्या है।
कि आपके पास पैसे नहीं, हाँ अगर आप श्योर है कि 5 दिन के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा, आप दे ही सकते हैं, 99 को 100% को पैसे श्योर है, तब आप उसकी कीजिए। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में नहीं, तो पैसा नहीं है, अगले मंथ में नहीं दे सकता, हाँ इसको EMI में कन्वर्ट करके ना, 6 महीना, 12 महीने का, 8 महीने का, 3 महीने का, ऐसे कन्वर्ट करके मैं दे दूँगा, तब वो सिचुएशन आपके हाथ पे नहीं है, वो आपके हाथ से बाहर जा रहा है, इट इज़ गोइंग आउट ऑफ योर हैंड, दैट सिचुएशन, नो। So then this is psychological thing also, this is powerful psychological tool also, ठीक है ना। वो आपके साइकोलॉजी को अपने वश में कर लिया है, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको अपने वश में कर लिया है ना, दे हैव ट्राइड टू हिप्नोटाइज यू, वश बोलते हैं ना, हिप्नोटाइज, वो आपको हिप्नोटाइज कर लिया है, एंड यू आर इन द ट्रैप नाउ इन द ट्रैप, यू आर स्पेंडिंग एनीथिंग, उसके बाद आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे आ जाते हैं, नो, हाँ ठीक है 30,000 का बिल है, 5% में दे देते, मे भी हुआ हो, बट हैव केम आउट, फॉल किया हो, बट मैं धीरे धीरे हो भी रहा हूँ। बट क्रेडिट कार्ड का तो एक चीज़ है, बाकी लोन्स का तो सब डिस्कशन करते हैं, बट क्रेडिट कार्ड एक हिप्नोटाइजिंग टूल भी है, एक पावरफुल हिप्नोटाइजिंग टूल भी है, कि हाँ आप ऐसा तो नहीं है, घूमने गए मॉल पे, रूमिंग अराउंड द मॉल, और इन अ वेरी बिग मॉल, सब बिग शॉपिंग मॉल, और एक स्टोर देखा, मोबाइल देखा, खरीदना है फ़ोन को, पैसा नहीं है, EMI में कन्वर्ट करते हैं, सो दिस इज हिप्नोटाइजिंग टूल। बट इफ़ यू डोंट हैव द मनी, बट क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज भी है इसमें, आप एक काम कीजिए ना, आप EMI में इस चीज़ को मत कीजिए, आप तो वैसे भी 12 महीने के बाद क्या करें, 12 महीने का EMI करें, तो 12 महीने का RD ओपन कर लीजिए, ओपन एंड रिकरिंग डिपॉजिट, थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने अंदर, पेशेंस, वो पेशेंस ही आपको ये हिप्नोटाइज जो करना चाहते हैं ना, दिस पावरफुल टूल, दे विल नॉट एबल टू हिप्नोटाइज यू इन दैट वे, ठीक है। सो थोड़ा सा आप अपना, ऐसे बहुत टॉपिक आई एम टेकिंग इट, सो थोड़ा सा हम अपना अंदर एक पेशेंस रखिए, ज़्यादा नहीं, आप 12 महीने का नहीं, आप 12 महीने का RD ओपन कर लीजिए, लेकिन आपका जो डिवाइस है ना, वो आपको 1 महीना ज़्यादा ही, 1 महीना पहले ही आ जाएगा आपके पास, वो आपको 1 महीना पहले ही आ जाएगा आपके पास, आप 11वें महीने में आपको अपना फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन आप 2000 का जो, आप सपोज मान लीजिए आपको अगर, या फिर 20,000 का फ़ोन चाहिए, आप 10 महीने का एक RD कर लीजिए, 12 महीना, ठीक है, 12 महीने का आपको मिलेगा, जैसे कुछ 6 महीना 12 महीने से होता है, किसी किसी जगह 12 महीने होता है, आप एक ओपन कीजिए RD, जो 10वीं महीना आएगा ना, आपको वो पैसा आ जाएगा आपके पास। या फिर आप लिक्विड फंड ओपन कर लीजिए, म्यूचुअल लिक्विड फंड, उसमें रिस्क होता है कभी कभी आज के टाइम पे, फिर भी तो रिस्क फ्री लो रिस्क वाला ओपन कर लीजिए, या फिर एक RD ओपन कर लीजिए, और जैसे 2000, तो आपका 9वां महीने में, आप 9th मंथ में आके आपको यू विल हैव what 18,000, right, 18,000 rupees, but you can use your credit card of 20,000, pay that 20 credit card, pay that 20,000 bill, फ़ोन, ठीक है ना। अगले महीना जब बिल आया, आपका RD में और भी 2,000 रुपये ऐड होकर 20,000 आप निकाल लिया, ठीक है। लेकिन आपको RD में एक, मान लीजिए 3-4% का इंटरेस्ट भी होता है, वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपके बैंक में रह जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, अब आपने क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट उठाया, क्रेडिट कार्ड आपका बेनिफिट नहीं उठा पाया, आपने बैंक का क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट उठाया इस टाइम पे। मंथ को, मतलब समझ गए होंगे आप कि जो मंथ को यू आर एवरी मंथ पेइंग 2,000 रुपीज़ बिल RD, 2000 हो के आपको 20,000 का फ़ोन चाहिए, तो आपको 10 मंथ्स में 20,000 बन गया। लेकिन 20,000 के ऊपर आपके ऊपर एक इंटरेस्ट भी देंगे बैंक आपको।
आपको आरडी ओपन करेंगे या फिर कुछ, और 9th मंथ में आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मंथ अपने यहाँ पे बचाया क्रेडिट कार्ड से, राइट, और आपको एक मंथ का एक्स्ट्रा एक आपको टाइम मिल गया, जो आप 1 मंथ का आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। पहले आपको मिल गया टाइम, दूसरा आपको इंटरेस्ट, 1 मंथ का एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको मिल गया। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं, और आपके पास पेशेंस नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आपको अपने जो डेट ट्रैप है उसमें फंसा के आपसे पैसा लेंगे। आपको वो तो सबको पता है क्या होता है वो, कि डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, तो वो हिप्नोटाइज कर लेंगे, आपको वश में कर लेंगे अपना। सो मोटा मोटी दिस इज़ द थिंग दैट हाउ यू शुड टेक अ क्रेडिट कार्ड। यू ऑल नो व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, बट दिस इज़ द वे यू शुड कीप अ चेक ऑन योर स्पेंडिंग पैटर्न। कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड ना होता और आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आप क्या करते? अब वही करते ना, आप एक अपना सेविंग्स या आरडी ओपन करते, या फिर म्यूचुअल फंड एक जगह पर अपना पैसा जमा करते, एंड कुछ दिन बाद वो फ़ोन को लेते। तो क्रेडिट कार्ड में वही चीज़ है, बस 1 मंथ का कोई बड़ा आइटम चाहिए ना, तो आप क्रेडिट कार्ड के उसका ईएमआई में कन्वर्ट मत कीजिए, चाहे वो 0% ईएमआई क्यों ना हो, मत कीजिए, या फिर बहुत ही कम ईएमआई में इंटरेस्ट पे क्यों ना हो। आप ट्राई कीजिए एक बार में सबको पेमेंट करने के लिए, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक डिफरेंट पेमेंट प्लान खोल लीजिए, अपने एक आरडी खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, फिर एक लिक्विड फंड ओपन कर लीजिए, वहाँ से आप पैसे जमा कीजिए। बस हाँ, क्रेडिट कार्ड की है कि क्रेडिट कार्ड आपको, अगर आप सिंगल क्रेडिट कार्ड यूज़र होल्डर, आपका 60% सिंगल क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड आपका अगर पैसा लग रहा है ना कि मुझे 12 महीने लगेंगे, ये चीज़ को अगर मेरे पास क्रेडिट नहीं होता है तो मुझे ना थोड़ा कम 5,000 रुपये के 2,000 रुपये का जमा कर सकता हूँ, मुझे 20,000 का फ़ोन लेने के लिए मुझे 12 महीने लगेंगे। तो क्रेडिट कार्ड में 12 महीने ही हैं, 12 महीने आपको, वो 11 महीने टाइम पे आ सकते हैं वो, लेकिन वो 12 महीने इंस्टेंट कभी नहीं हो सकता कि 12 महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा तभी मैं कर सकता हूँ चीज़ों को। तो क्रेडिट कार्ड आज, हाँ क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो ही होता, क्रेडिट कार्ड है तो मैं आज ही कर सकता हूँ, नहीं। क्रेडिट कार्ड ओनली गिव्स यू advantage of only 1 month, not more than that, of getting anything done or getting anything, no, to purchase anything or getting anything done. It gives advantage of only 1 month. It cannot give advantage of 12 months, 24 months or 36 months, जो EMI में कन्वर्ट करके, हाँ ठीक है हम 36 मंथ्स में इसको की पेमेंट कर देंगे। डोंट फॉल दैट ट्रैप, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि हाँ क्रेडिट कार्ड ओनली गिव्स यू advantage time of a single credit card user, of any credit card user, only 1 month, that's it. Advantage of 1 month, that's it. It cannot give you advantage of 12 months, 24 months or 36 months or 6 months, anything. If you're getting into this trap, falling into this trap of हाँ मैं 6 months तक पैसा इसको दे दूँगा, then no, you're gone. बट टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन, हाँ इस क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करते हैं, उसमें नो कुछ कैशबैक्स, क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट भी, गेट कैशबैक्स, यू कैन यूज दोस रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड गेटिंग कैशबैक्स, गेटिंग डिस्काउंट्स ऑन अदर स्टोर्स, द एडवांटेजेस ऑल्सो। बट दिस इज द सिनेरियो ऑफ हाउ क्रेडिट कार्ड्स है। इट्स अ वास्ट टॉपिक, but today I will end this topic over here only. I think you have got what is a credit card, how I've able to explain that how you should use a credit card, how you should look at credit card at certain things, and how I think everybody looks in that को आपको कैसे देखना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड तो आपको ना बेनिफिट बस 1 मंथ का ही देते हैं, 1 मंथ से ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देंगे। अगर आपके पास वो पैसा नहीं है ना, तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपको लग रहा है कि अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता और आपके पास पैसा भी नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ना 6 महीने और लगेंगे इस चीज़ों को ख़रीदने के लिए, फिर 1 साल लग जाएंगे, तो वही है वो 6 महीना कम, मैक्सिमम आपको 5 मंथ्स हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड में। 6 महीना कभी इंस्टेंट नहीं हो सकता, या फिर वो 1 महीना भी नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर साल अगर आपको लगता है कि नहीं अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपको मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड बंद है,
आपके पास मान लीजिए क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आपको लग रहा है कि नहीं क्रेडिट कार्ड नहीं है, जो मेरे एक्सपेंसेस है ये चीज़ को ख़रीदने के लिए, फिर चीज़ को ये ट्रैवल करने के लिए, कहीं पे कुछ छुट्टियाँ हॉलीडे जाने के लिए मुझे 12 महीने लगेंगे उस ट्रैवल के एक्सपेंस को कवर करने के लिए, फिर वो फ़ोन को ख़रीदने के लिए। तब वो 12 महीना कभी इंस्टेंट नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी इंस्टेंट, नो। वो 12 महीने मैक्सिमम 11 महीने हो सकते हैं। क्यों? 11 महीने तक आप पैसे जमा करो, 12 महीने का आर डी करो, 11वें महीने में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, वो एक मंथ का बेनिफिट आ गया आपको, और 12 महीने का वो पैसा को ऐड करके आप क्रेडिट कार्ड का बिल दे दो। अब 12 महीने में आपको एक इंटरेस्ट भी आ जाएगा, वो इंटरेस्ट का जो मनी है वो आप रख सकते हैं अपने बैंक में, एक्स्ट्रा मनी जो बचेगा, दैट एक्स्ट्रा मनी, सॉरी। तो आपको ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, देन ओनली इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ द क्रेडिट कार्ड। मैं क्रेडिट कार्ड को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट क्रेडिट कार्ड का एक ऐसा पावर है ना जो आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कैसे आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया है। आप घूमने जाएंगे, आपको कई चीज़ अच्छा लगेंगे, जाते ही हम लोग बाहर जाते हैं, ऑनलाइन में कुछ सर्चिंग करते हैं, कुछ चीज़ देखते अच्छा लगता है, तो क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं। लेकिन आप अगर डेबिट कार्ड उसमें बैंक अकाउंट, आप अपने बैंक के बैलेंस को चेक कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है, वो आपको परमिशन नहीं देंगे पैसा, आपके पास पैसा नहीं है तो आप खरीद भी नहीं सकते उस चीज़ों को। बट आपके पास वो पैसा है तो ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो पैसा नहीं, फिर भी यूज़ कर लो। सो मोटा मोटा आपको अंडरस्टैंड आ गया। होप यू लाइक द वीडियो, and I think you've got an idea that what is credit card is all about, and I will discuss a lot of other things about debt and credit cards. This is a very vast topic, but I think I'm ending this topic right now. Thank you very much.